بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین سے آسماں تک ہے، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے اس محفل نور کو سجایا گیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں میرا عنوان اس ذات سے لگتا ہوا عنوان ہے جو ذات بابرکات آج پروگرام کے اختتام پر آپ کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، نام معلوم ہے نا، قاضی القضات فی الہند، سبحان اللہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان قادری برکاتی رضوی مدد ذل العالی والنورانی، جو آج کی اس محفل کے اختتام میں قادری غلاموں میں نام لکھوانے والوں کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کر کے ان کی قسمت کو معراج عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی چونکہ اخیر میں وہ مائک پر حضرت تشریف لائیں گے بریلی شریف سے، اور روحانی طور پر آج بھی ابھی بھی اس وقت بھی ان کی نظر کرم ہم سب کے اوپر ہے۔ اور آج کل پیر بہت ہیں، جیسے مارکیٹ کے اندر آج کل ہر طرح کا مال مل رہا ہے، اصلی بھی مل رہا ہے، نقلی بھی مل رہا ہے، اوریجنل بھی مل رہا ہے، ڈپلیکیٹ بھی مل رہا ہے۔ تو جب ہر چیز کے اندر اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کئی کوالٹی بن چکی ہے، تو پیروں کے اندر بھی بہت ساری کوالٹی ہو گئی ہے، کچھ اصلی پیر ہے، کچھ ڈھونگی اور نقلی پیر بھی ہے، کچھ اوریجنل پیر ہے تو کچھ ڈپلیکیٹ پیر بھی مارکیٹ کے اندر لانچ کیے جا چکے ہیں۔ آپ جب مارکیٹ کے اندر مال لینے جاتے ہو تو پوری تلاش کرتے ہو، پہچان کرتے ہو کہ غلط مال میرے پاس میں نہ آ جائے، ڈپلیکیٹ سامان کہیں مجھے نہ مل جائے۔ تو جب آپ پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اور زیادہ پہچان کی ضرورت ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ کس پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ہمیں مرید ہونا ہے، اس لیے کہ جو پیر صحیح معنوں میں پیر نہ ہو وہ تمہاری رہبری نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم راستے پر رہو گے تو بھی تمہیں راستے سے بھٹکا کر کے گمراہ کر دے گا۔ حضرات مکرم، بیعت کا معنی، مرید ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بیعت کا معنی ہوتا ہے پورے طور پر بک جانا، پورے طور پر بک جانا، اور مرید ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنا ہاتھ ایسے کامل پیر کے ہاتھوں میں دے کر کے وعدہ کرنا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، نیک کام کروں گا،
اور हर तरह की बुराई से परहेज करूंगा। इसका मतलब होता है मुरीद होना। और सहाबा किराम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत हुआ करते थे। कभी सहाबा किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हिजरत पर बैत की, कभी जिहाद पर बैत की, कभी सुन्नतों पर अमल की बैत की, कभी बिदअतों से परहेज करने के लिए मेरे आका की बारगाह में बैत की। औरतों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस बात पर बैत की कि वो बेहयाई से परहेज करेंगी। और मुहाजिरीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस बात पर बैत की कि हम कभी किसी से सवाल नहीं करेंगे। अंसार ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर इस बात पर बैत की कि वो हक के ऊपर डट करके रहेंगे और हक से कभी तजावुज नहीं करेंगे। और अजीजान मुकर्रम, बैअत का जो सिलसिला आज कायम है इसकी शक्ल अगरचे दूसरी है, वरना बैअत तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना युबाइउनका इन्नमा युबाइउन अल्लाह। आए महबूब, जो तेरे दस्ते पाक पे बैअत कर रहे हैं वो अल्लाह ही से बैअत कर रहे हैं। ये कौन सी बैअत थी? जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम हुदैबिया से मक्कतुल मुकर्रमा में काफिरों से बात करने के लिए गए थे और हुदैबिया के अंदर ये अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो बैअत रिजवान जो दरख्त के नीचे सहाबाई किराम ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत का जिक्र कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया। इसी तरह जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह किया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सफा के पहाड़ी के ऊपर बैठ गए। औरतें मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में बारी बारी आने लगी और मेरे आका अलैहि सलाम से बैअत करने लगी कि वो चोरी नहीं करेंगी, वो बदकारी नहीं करेंगी, औरतों को कत्ल नहीं करेंगी, बोतान नहीं बांधेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत को भी कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका, यानी ऐ महबूब, ये जो मोमिना औरतें आपकी बारगाह में आकर के इस बात पर बैत कर रही है कि वो शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी और बोहतान नहीं बांधेंगी, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। तो हजरत मुकर्रम, बैअत का सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरा रब कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस आयत करीमा में वसीला से मुराद है मुर्शिद, यानी तुम किसी मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हजरत मुकर्रम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नजरें देख रही थी कि जगह जगह लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, जाली पीर और ढोंगी बाबा बन करके लोगों के ईमान पर डाका डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो मेरे इमाम ने पूरी तफसील के साथ में पीर कामिल की शर्तों को बयान फरमा दिया था। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रखूंगा ताकि अपनी गुफ्तगू के आखिर के अंदर जो मैं आपको दावत देने वाला हूँ वो दावत आपको समझने के अंदर आसानी रहे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, पीर के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। सुन्नी सहीउल अकीदा हो, इसलिए कि जो गुमराह होगा वो खुद ही जहन्नम में जाने वाला है, तुम्हें क्या जन्नत में पहुंचाएगा। इतना इल्म रखता हो जिसके जरिए वो किताबों से शरीयत के मसाइल निकाल सकता हो, जो इल्म ना रखता हो वो खुद ही नहीं जानता है, तुम्हें क्या रायाब करेगा। आला हजरत फरमाते हैं, सिलसिला मुत्तसिल हो, जब सिलसिला मुत्तसिल नहीं होगा तो वो सरकार की बारगाह तक तुम्हें कैसे पहुंचाएगा। फरमाते फासिक ना हो, जो फासिक होगा उसकी तो ताजीम जायज नहीं है और पीर की तो ताजीम की जाती है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, आजकल पीर की शर्तें लोग जानते हैं फिर भी धोखे के अंदर पड़ जाते हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीर के लिए 4 शर्तें बयान की। क्या इन शर्तों के अंदर ये भी शर्त है कि पीर के लिए जरूरी है कि वो सैयद हो, आले रसूल हो। लेकिन आजकल कुछ लोग बैरी शरीफ से दूर करने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुरीद तो उसी पीर से होना चाहिए जो पीर सैयद हो, आले रसूल हो, हजरत फातिमा की औलाद में से हो, हसनी हो या हुसैनी हो। अजीजान मुकर्रम, जो इस तरह की बातें करते हैं वो किस तरह से गुमराह करते, आओ मैं आपको बताता हूँ। क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के अंदर आले रसूल नहीं थे, सादात नहीं थे, लेकिन आला हजरत ने जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुरीद होना हुआ तो हुजूर गौसे पाक ने किसी आले
रसूल का दामन नहीं पकड़ा, किसी सैयद का दामन नहीं पकड़ा। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में हाथ दे करके मुरीद हुए, वो सैयद नहीं थे। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस पीर से मुरीद हुए, हजरत अबुल हसन, वो भी सैयद नहीं थे। हजरत अबुल हसन जिस पीर से मुरीद हुए, हजरत अबुल फरा, वो भी सैयद नहीं थे। यानी इमाम रजा अली से लेकर के हुजूर गौसे पाक तक सिलसिला कादरिया के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, आप सबके नाम पढ़ लो। इमाम रजा अली से लेकर के हुजूर गौसे पाक तक सिलसिला कादरिया के अंदर कोई भी पीर आपको सैयद नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ये कहता है कि पीर के लिए सैयद होना जरूरी है, तो माज़ अल्लाह, क्या सिलसिला कादरिया सही सिलसिला नहीं है? इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे पीर पाए जाते हैं जो सैयद नहीं है। इसी तरह आप देखें सिलसिला चिश्तिया के अंदर हजरत मौला अली के बाद में हजरत हसन बसरी है, वो भी सैयद नहीं है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मुरीद होना था तो किसके दर पे गए थे? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के दर पे गए थे। सैयद बहुत थे, आले रसूल बहुत थे, सादात बहुत थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना हाथ अगर दिया तो हजरत उस्मान हारूनी के हाथ में दिया जो सैयद नहीं थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बता दिया पीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है। सिलसिला नक्शबंदिया में आप देख ले, सिलसिला नक्शबंदिया अगर शुरू होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू होता है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सैयद रही है। अजीजाने मुकर्रम, ये अच्छी बात है कि अगर कोई सैयद हो और उसके अंदर पीर की शर्तें पाई जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको आप पीर बनाइए। लेकिन ये कहना कि मुरीद तो किसी सैयद से होना चाहिए, ये लोगों को धोखा देना है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, और इस प्रोपेगेंडे से हमें होशियार होने की जरूरत है। इसी तरह हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है, वो करतब ढूंढते हैं, तमाशा ढूंढते हैं, कहते कोई करामत दिखाएगा उससे हम मुरीद हो जाएंगे। हजरत मुकर्रम, किसी पीर के लिए करामत दिखाना भी जरूरी नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आता है, कई दिनों तक रहता है, और फिर बाद में जब जाने लगता है, हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो, तुमने बताया नहीं। वो कहने लगा हुजूर मैं मुरीद होने आया था, आपसे कोई करामत नजर नहीं आई, मैं मायूस होकर के जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तू इतने महीनों तक यहाँ पर रहा, बता तूने मेरा कोई काम शरीयत के खिलाफ देखा कि नहीं देखा? कहा हुजूर मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं देखा है। हुजूर जुनैद बगदादी कहते हैं मेरी सबसे बड़ी करामत यही है कि मैं शरीयत के ऊपर अमल करता हूँ। लिहाजा तमाशा मत ढूंढो, कहीं पर झूठे करतब मत ढूंढो। अगर पीर होना है, अगर किसी को मुरीद होना है और पीर तलाश करना है, तो ये चार शर्तें जिस पीर के अंदर पाई जाए उस पीर के हाथों में अपना हाथ दे करके आप हजरात मुरीद हो जाए। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की सआदतें आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इसी तरह आजकल कुछ लोगों को देखा जाता है, वो दुनियावी फायदा ढूंढते हैं, कहते पीर वो होता है जो बंद दुकान को चला दे, पीर वो होता है जो बंद फैक्ट्री को चला दे, पीर वो होता है जो बीमार को शिफा दे दे। मेरे गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं पीर कामिल वो है कि उसकी बारगाह में अगर कोई बदबख्त आए तो पीर नजर डाल करके उस बदबख्त को नेकबख्त बना दिया करता है। इसीलिए हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बदबख्त आया, थोड़ी देर बैठा, आपके सिलसिले में दाखिल हुआ, उठ करके जाने लगा। लोगों ने कहा देखो बदबख्त जा रहा है, आवाज आती है। ये जब आया तो बदबख्त था, लेकिन जुनैद बगदादी के दामन से वाबस्ता हो गया, तो अब ये बदबख्त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नेकबख्त बना दिया है। तो हजरत मुकर्रम, आप दुनिया का फायदा न ढूंढे। अगर किसी से आपको बयात होना है तो ये देखें कि आखिरत का फायदा कहाँ पे नजर आता है। अजीजाने मुकर्रम, आज हालात बड़े अजीब हो चुके हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को फांसने के लिए तरह तरह की शक्लें बना करके आ रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनना, हाथों में कड़े पहनना, 10-10 अंगूठी पहनना, झटादारी बालों को रखना, और न जाने चर्च पेन पी करके अपने आप को मस्त बलंग बताना। कैसी कैसी हरकतें लोग कर रहे हैं, और लोगों की आंखों को बंद करके कैसे कैसे तमाशा दिखा रहे हैं। अजीजाने मुकर्रम, इस खराब माहौल के अंदर आपको अगर पीर कामिल का दामन चाहिए तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इस जमाने के अंदर पीर कामिल
آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پھر ایک بات یاد رکھیں، مرید ہونا، بیعت ہونا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور کوئی بندہ جب مرید ہوتا ہے، اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ ایک زنجیر ہے جو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک سے مل جاتی ہے۔ اور میرے اور قرآن مقدس میں آپ دیکھیں رب کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ یعنی بندہ جب کسی پیر کامل سے بیعت ہو جاتا ہے تو وہ سچوں کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مرید ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ حضور سے جڑ جاتا ہے، اور جو نظر والے ہیں وہ فائدہ دنیا میں دیکھتے ہیں، اور جن کے پاس نظر نہیں ہے اگر ان کا سلسلہ سلامت ہے تو پھر وہ موت کے وقت میں اس کا فائدہ دیکھیں گے، قبر میں اس کا فائدہ دیکھیں گے، حشر میں اس کا فائدہ دیکھیں گے، پل صراط پہ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں علماء ربانیین، اولیاء کرام اور پیران کامل اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے پیروکاروں کی شفاعت کل قیامت کے دن کریں گے۔ وہ قبر میں بھی کام آئیں گے، نزا میں بھی کام آئیں گے، پل صراط پہ بھی کام آئیں گے، اور جب نامہ اعمال کھلنے لگیں گے تب بھی کام آئیں گے۔ پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد میں بندے کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور تو بہت سارے فائدے ہیں۔ اس زمانے کے اندر میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کسی پیر کامل سے مرید ہو جائے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہابی دیوبندی وغیرہ گمراہوں سے بچ کر کے اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ زمانے کے اندر پیر سے مرید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور حضرات مکرم آپ کہیں گے ہم مرید نہیں ہوئے ہیں، اب ہم کو مرید ہونا ہے، ہم کس سے مرید ہوں؟ تو آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے پیر ملیں گے۔ جس پیر کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہے ان میں سے کسی بھی پیر کامل سے آپ مرید ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ بتائیے ہم کس سے مرید ہو جائیں، تو میرا مشورہ کیا ہے اسے میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانقاہ ماہرہ سے مرید تھے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، آنے کے بعد میں عرض کرتے تھے حضور ہمیں آپ مرید کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے میں نہیں مرید کروں گا، جاؤ ماہرہ مطہرہ چلے جاؤ۔ کئی لوگوں کو آپ نے ماہرہ مطہرہ بھیج دیا، خود آپ بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک مرتبہ رات میں سوئے ہیں، خواب میں آپ کے پیر و مرشد سیدی آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا تم مرید کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے سلسلے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو مرید کرو اور سلسلے کو فروغ دو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر حضور آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سنا، پھر آپ نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں پورے ہندوستان کے اندر گلی گلی میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، قریہ قریہ کے اندر اعلیٰ حضرت کے مریدین نظر آتے رہے اور رضویوں کی ایک فصل بہار آ گئی۔ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا، حضور حجت الاسلام مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے تو لوگ دور دور سے آتے تھے حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بیعت ہوتے تھے اور رضوی غلاموں میں نام لکھا کر کے اور پھر قادری پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیا کرتے تھے۔ جب حضور حجت الاسلام کا انتقال ہوا، حضور مفتی اعظم ہند مسند ارشاد پر بیٹھے، پھر آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے والوں کا تانتا بن گیا۔ کوئی کسی اسٹیٹ سے آ رہا ہے، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں سرکار مفتی اعظم ہند کے در دولت پر لوگ آ کر کے مرید ہونے لگے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد میں کیا ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے۔ جس کو بھی مرید ہونا تھا، پیر تو بہت سارے تھے، اس میں سے سچے پیر بھی بہت تھے، لیکن اگر نظر اٹھتی تھی تو کہیں اور نہیں اٹھتی تھی۔ سب کی نظریں اگر اٹھتی تھی تو حضور تاج الشریعہ کی طرف اٹھتی تھی۔ سب کہتے تھے جتنے پیر ہیں سچے پیر ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اگر ہم اپنا سر اگر کسی کے قدموں میں رکھیں گے تو وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہوگی۔ اور حضور تاج الشریعہ کے سلسلے کے اندر داخل ہونے والوں کی جو آپ نے بہار دیکھی ہے وہ تو نقشہ ہی الگ ہے۔
उसको जब बयान किया जाता है ना तो फिर आदमी महसूस करने लगता है, ऐसा लगता था महफिल के अंदर नूर का टुकड़ा उतर आया है। हुजूर ताजुश शरिया जब तशरीफ लाते थे ऐसा लगता था जैसे नूर के काफिले आपके साथ में आ गए हैं। हुजूर ताजुश शरिया जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे, लोग आपसे जुड़ करके सिलसिला कादरिया के अंदर मुरीद होते रहे, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो गया तो लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल था कि हुजूर ताजुश शरिया तो चले गए, वो नूर का टुकड़ा चला गया, वो नूरानी काफिले को लेकर के चलने वाला मीरे कारवां चला गया। अब हम किसके हाथों में हाथ दे करके अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालेंगे और हम किसके हाथों में हाथ देकर गौसे पाक के मुरीदों में अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह और नूरानियत का एक मुक़द्दस काफिला हुजूर कायदे मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा खां मुक़द्दसिल आली व नूरानी को अता करके गए। ये लोगों को उस वक्त पता चला जब मंजर आम पर हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ाते बाबरकत आती है। अब यहाँ पर अगर मैं ये जुमला कह करके निकल जाऊं तो आप सोचेंगे मैंने मोहब्बत के अंदर कह दिया है। इसमें मैं थोड़ी तफसील करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई मुरीद होना चाहता है तो आला हजरत सरकार ने जो पीर की शर्तें बताई है उन शर्तों को देखता है। मैं कहता हूँ हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ात को एक तरफ रखो और उसके बाद में जो पीर के अंदर शर्तें ज़रूरी है उन शर्तों को एक तरफ रखो। सबसे पहली शर्त क्या बताई थी हुजूर आला हजरत सरकार ने कि सुन्नी सहीउल अकीदा हो। मैं कहता हूँ आला हजरत सरकार बहुत पहले कह के चले गए, मैंने इश्क़े रसूल और गुस्ताखों की नफरत अपने बच्चों को घुट्टी के अंदर पिला दी है। और हुजूर कायदे मिल्लत खानदान आला हजरत के एक फर्द है। हुजूर कायदे मिल्लत का अकीदा तो मजबूत है ही, हमने देखा है जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो भी वहाबिया से नफरत करने लग जाता है। अल्लाह अकबर। तो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, ये पहली शर्त है। और उसके बाद में दूसरी शर्त है उसके पास में इल्म हो। मैं कहता हूँ जिसने इल्म का सागर जो हुजूर ताजुश शरिया थे, इल्म के सागर हुजूर ताजुश शरिया से इल्म के जाम पिए हो, उस हुजूर कायदे मिल्लत के पास में कितना इल्म होगा ये वही जानता है जिसने इल्मी अंदाज के अंदर हुजूर कायदे मिल्लत से गुफ्तगू की हो। ये शर्त भी हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर बड़ी तवानाई के साथ में पाई जाती है। और उसके बाद में तीसरी शर्त को आप देखेंगे, तीसरी शर्त क्या है, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। मैं कहता हूँ हुजूर कायदे मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के आप देख लें, आपकी जबान से ये जुमला निकलता हुआ नजर आएगा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत मा के वास्ते। ये सिलसिला ऐसा मुत्तसिल है कि हुजूर आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने खुद कह दिया मेरे सिलसिले में लोगों को मुरीद करके इस सिलसिले को तुम फरोग दो। और उसके बाद में आखिरी जो चौथी शर्त है कि वो फासिक ना हो, गुनाह कबीरा से बचता हो। मैं कहता हूँ नजरें उठा के देख लो, नजरें उठा के देख लो, इस जमाने में गुनाह कबीरा से बचने वाले जो पीर है उनमें हुजूर कायदे मिल्लत का कितना बड़ा मकाम है। आप कभी वीडियोग्राफी के अंदर हुजूर कायदे मिल्लत को मुलव्विस नहीं देखेंगे, तस्वीर कशी में नहीं देखेंगे। वहाबिया के साथ में आप खाना खाने के लिए जो जवाज की राहें तलाश करते हैं उनमें कायदे मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। बद मजहबों के ज़बिया को जो हलाल करना चाहते हैं उनमें आपको कायदे मिल्लत नजर नहीं आएंगे। और ख्वातीन के साथ में जो मेला और हुजूम करते हैं उनमें कायदे मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ जितने भी गुनाह कबीरा है उनकी फहरिस्त बना करके देख लो और उसके बाद में कायदे मिल्लत की जात को देखो। हमने कहा था ना मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई हजरत अख्तर रजा को छोड़कर इस जमाने के अंदर हम कहते हैं तकवाए ताजुश शरिया का जलवा अगर देखना हो तो हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर आपको आला हजरत सरकार, मुफ्ती आजम सरकार, हुज्जतुल इस्लाम सरकार और हुजूर ताजुश शरिया का तकवा आपको पूरे तौर पर नजर आएगा। अजीजाने मुकर्रम, एक बात मैं और बताऊं, अच्छे पीर की पहचान क्या है। एक बार कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें अच्छों की पहचान बताऊं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका ने फरमाया इज़ा रूहु ज़ुकिरल्लाह, उनको जब देखो तो खुदा याद आ जाए। आपने कायदे मिल्लत को देखा है? अगर देखा है तो आप गवाही देंगे, मैंने भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कायदे मिल्लत का चेहरा देखते दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। बेशक बेशक हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर ये बात भी बदर्जा अतम पाई जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं गुनहगार आए थे कायदे मिल्लत का चेहरा देख करके नेक बन गए, कितने गैर मुस्लिमों ने आपका चेहरा देख करके कलमा पढ़ लिया, कितने वहाबिया दयाबना ने आपका चेहरा देख करके गुमराहियत से तौबा कर ली। पीर का मतलब क्या होता है कि जब बंदा किसी से मुरीद हो, अगर गुनहगार था तो नेक बन जाए और नेक था तो पहले से ज्यादा
नेक बन जाए। हुजूर कायद मिल्लत की बारगाह में गुनहगार आते हैं तो नेक बन करके जाते हैं, और नेक आते हैं और ज्यादा नेक बन करके जाते हैं। आज मुझे बताओ तस्वीर कशी से, वीडियोग्राफी से बचने वाले किसके मुरीद हैं? वहाबियों से दूर रहने वाले किसके मुरीद हैं? कवाली ढोल ताशा से परहेज करने वाले किसके मुरीद हैं? बदमज़हबों के ज़बिया से बच करके अपने हाथ से लिबा करके खाने वाले किसके मुरीद हैं? और मैं कहता हूँ आज फितनों के इस दौर के अंदर तरह तरह के जो तमाशों में जो मुब्तला है, उन तमाशों को छोड़ करके शरीयत पे गामजन होने वाले किसके मुरीद हैं? मुरीदों को देख करके पता चलता है कि पीर का मर्तबा कितना बुलंद है। और हजरत मुकर्रम, एक बात मैं और यहाँ पर भी अर्ज करना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने बताई है। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह अल इब्रीज शरीफ के अंदर जो आपके मलफूजात को जमा किया गया है, उसमें लिखा गया है, उसका खुलासा मैं आपको बताता हूँ। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब किसी वली कामिल का इंतकाल होता है, अल्लाह का वली जब दुनिया से चला जाता है, उस वली की जो रूहानियत होती है, उस वली का जो सिर होता है, उसको हजरत जिब्रील अमीन संभाल करके रखते हैं। उसका नाइब जब उसके लायक हो जाता है तो उस वली कामिल की रूहानियत और उसका सिर उसके जानशीन को दे देते हैं। लेकिन अगर वली के इंतकाल के बाद में, उस कुतुब के इंतकाल के बाद में उसका जानशीन अगर मजबूत होता है, अगर उस मनसब के लायक होता है, तो ये मर्तबा और ये ओहदा हजरत जिब्रील के पास में महफूज नहीं रहता है। उधर अल्लाह का वली इंतकाल करता है और उधर वो रूहानियत उठा करके उनके जानशीन को दे दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा अपना फैसला नहीं है, मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ। हुजूर कायद मिल्लत को आपने हुजूर ताजुश शरिया के ज़माने में भी देखा था और हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद भी देखा था। आपने क्या देखा था? वो देखा था, मैं बताता हूँ। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ है जुमा के दिन मगरिब की अजान के वक्त में, और हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में मैं पहुंचा हूँ जुमेरात के दिन असर के वक्त में। असर से लेकर मगरिब तक हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में हॉस्पिटल के अंदर में रहा। हजरत को डिस्चार्ज किया गया, मैं हजरत के साथ में बाहर आया, मैंने हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा भी देखा। लोग जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो बदन कमजोर होता है, तो चेहरा मुरझा जाता है। कसम खुदा की कहता हूँ, 24 घंटा पहले इंतकाल से मैंने देखा था, रोजाना जितना चमकते थे आखिरी वक्त में उससे ज्यादा चमकदार नजर आ रहे थे। हुजूर ताजुश शरिया को जब गाड़ी में बिठा दिया गया, 24 घंटे के बाद में हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हो गया। जब हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ तो हमने हुजूर कायद मिल्लत को देखा। मैंने कहा, हमारे साथियों ने कहा, बहुत सारे उलमा ने कहा कि हुजूर कायद मिल्लत को देख करके ऐसा लग रहा था कि कायद मिल्लत नहीं बल्कि ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं। तो मुझे हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की वो बात याद आई, जब अल्लाह का वली इंतकाल करता है, उसकी रूहानियत, उसके जानशीन अगर उसके लेने के लायक होते हैं तो उनकी रूहानियत को महफूज नहीं रखा जाता है। इंतकाल के फौरन बाद में उसके जानशीन को वो रूहानियत दे दी जाती है। तो मेरे दिल से आवाज आई, या हुजूर ताजुश शरिया, आप दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन आप जिसको जानशीन बना के जा रहे हैं वो वाकई आपके जानशीन बनने के लायक है। इधर आपका इंतकाल हुआ, उधर उनके चेहरे पे आपकी रूहानियत का जलवा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। और मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा था, अगर अल्लाह का वली 5 मिनट के लिए कहीं पर बैठ जाए ना, वहां पे इतना नूर होता है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और अल्लाह का वली जहां पे रहता है वहां पे कितनी रूहानियत होगी। मैं बात समझाने के लिए एक बात आपको, एक वाकया सुनाना चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, गारे सौर में पहुंचे। गारे सौर में कितने दिन रहे? 3 दिन रुके। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम काफिरों के तलवार के घेरे को तोड़ करके चले आए, काफिर देख नहीं पाए, तो हुजूर गार में 3 दिन क्या कर रहे थे? मेरे आका एक मुट्ठी उछाल देते और गार से निकल करके चले जाते, काफिर नहीं देख पाते। लेकिन जब मैंने तारीख पढ़ी, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर पढ़ा, तब मुझे समझ में आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हो सकता है इसलिए 3 दिन गारे सौर के अंदर कयाम किया हो, ताकि मेरे बाद में जो फितने पैदा होंगे उन फितनों का मुकाबला करने के लिए एक अजीम जात की जरूरत है। मेरे आका ने गार के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को वो सब कुछ पिला दिया जो फितनों का मुकाबला करने के लिए जरूरत थी। जब गार से निकल
निकल करके हजरत सिद्दीक अकबर के साथ में मेरे आका जब गए हैं मकाम कुबा के अंदर, जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो आए और हजरत सिद्दीक अकबर को देखने लगे। सिद्दीक अकबर समझ गए कि लोग मुझको गलत समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं खादिम नहीं हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक पर्दे से पर्दा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे पाक के ऊपर तान दिया और बता दिया मैं गुलाम हूँ, आका इधर तशरीफ फरमाए। बात समझ में नहीं आती, आका तो पहचान लिया जाता है, लोगों को शुबा कैसे हो गया? शुबा इसलिए हो गया कि 3 दिन तक गार में मेरे आका ने जो रूहानियत पिलाई थी हजरत सिद्दीक अकबर को, तो फिर पता लगाना मुश्किल हो गया था कि ये नूर वाली जात कौन सी है। हजरत सिद्दीक अकबर में मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत का जलवा नजर आ रहा था। हजरत मुकर्रम मैं ये तशबीह नहीं दे रहा हूँ, बात समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। जब मेरे आका 3 दिन तक गार के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को इतनी रूहानियत अता फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का सदका गुलामों को भी अता किया है। इसीलिए हमने देखा है हुजूर के गुलाम भी जब किसी पे तवज्जो डालते हैं तो उसका भी नक्शा बदल देते हैं। दिल्ली की सरजमीन पे चले जाएं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का मज़ार है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, रात का वक्त है, मेहमान आ गए, परेशान थे, मैं खाना कहाँ से खिलाऊं? नान भाई आया, कहने लगा हुजूर मैं खाना बनाता हूँ, खाना बना के लाया, सारे मेहमानों को खिला दिया। हजरत बाकी बिल्ला खुश हो गए, कहा जो मांगना है वो मांग ले। कहा हुजूर आप ऐसा करें जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। वो पढ़ा लिखा था नहीं, समझ नहीं पाया, कहने लगा हुजूर जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। आपने कहा कुछ और मांगो, कहा नहीं हुजूर मैं तो यही मांगता हूँ। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का दरिया रहमत जोश में आया, आपने सीने से उस रोटी बनाने वाले को लगाया और लगा करके रूहानियत को उसके सीने में मुंतकिल कर दिया। और रात के बाद में सुबह के वक्त में जब खानका से निकला तो लोगों ने कहा देखो ख्वाजा बाकी बिल्ला आ गए हैं। अगर अल्लाह का वली अपने सीने से एक बार किसी को लगा दे तो अपने जैसा बना देता है। सारी जिंदगी सफर के अंदर, आखिरी उम्र के अंदर हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहब हुजूर ताजुश शरिया के साथ में रहते थे, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया के विसाल को 1 साल बाकी रह गया, हुजूर मुफ्ती आशिक साहब अपने कामों में मसरूफ रह गए। हजरत के पास में ज्यादा वक्त में हुजूर कायदे मिल्लत रहते थे, दिन में भी साथ में है, दीगर औकात में भी साथ में है, रात में भी साथ में सोते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद में मुझे पता चला ये 1 साल तक हजरत बाहर निकलना बंद कर दिए और कमरे के अंदर कायदे मिल्लत को साल भर साथ में रखा। आखिर क्यों रखा ये उस दिन पता चला जिस दिन हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ। तब लोग कह रहे थे ये ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं, तो मेरे दिल से आवाज आई वो साल भर तक जो पिलाया था वो जलवा आज हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल के अंदर नजर आ रहा है। अल्लाह मुकर्रम वो अजीम जात वो पीर कामिल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम गुरबा अहले सुन्नत के ऊपर अपनी तवज्जो और अपनी नजर करम किए हुए हैं। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आज हुजूर कायदे मिल्लत इस महफिल के अंदर हाजिर होने वाले जो अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालने वाले हैं उनको अपने सिलसिले के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाह वालों की तवज्जो भी क्या हुआ करती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई काफ के ऊपर एक परिंदा रहता है, जब सर्दी का मौसम आता है वो परिंदा कई गर्म इलाके में चला जाता है, उसके अंडे कोई काफ में रह जाते हैं और वहीं से वो अंडों पे तवज्जो करता है। जब सर्दी खत्म हो जाती है वो परिंदा वापस कोई काफ पे जाता है तो अंडों से बच्चे निकल आते हैं। मैं कहता हूँ एक परिंदा अगर कई किलोमीटर दूर चला जाए तो अंडों पे तवज्जो करे तो अंडों से बच्चे निकल सकते हैं। तो अगर पीरे कामिल अपने मुरीद पे नजर करे तो मुरीद को क्या से क्या बना सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मुकर्रम ये तो बड़ी किस्मत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे पीर अता फरमाए हैं। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम तबरेज नबाशद, यानी जब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत शम तबरेज के मुरीद नहीं हुए थे, गुलाम नहीं हुए थे तो बात अलग थी, लेकिन जब शम तबरेज के मुरीद हो गए तो उसके बाद में नक्शा ही बदल गया। पीर की जरूरत किसको नहीं पड़ती है। याद करो इमाम राजी जो अपने जमाने के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल का जब वक्त आया ना शैतान ने आकर के कहा था अल्लाह के एक होने पे दलील दो। आप दलील देते रहे, वो दलीलों को काटता रहा। 360 दलीलें दी, सारी दलीलों को काट दिया। परेशान हुए। बहुत दूर आपके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा वुजू बना रहे थे, अपना लोटा वहीं से उछाल के कहा तू कह क्यों नहीं देता
सकता, मैंने खुदा को बगैर दलील के एक माना है। आपने ये बात कही और ईमान पे खात्मा हो गया। अगर पीर कामिल हो तो मौत के वक्त में ईमान बचाने आता है, शैतान से हिफाजत करता है। और हमारा पीर कौन है? हमारा पीर वो है जिसने हमें अपना नहीं गौसे पाक का गुलाम बनाया है। कौन गौसे पाक? हजरत शेख अब्दुल जब्बार रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी माँ यानी गौसे पाक की अहलिया मोहतरमा जब अंधेरे में जाती थी तो अंधेरे में उजाला ही उजाला हो जाता था। एक बार गौसे पाक तशरीफ ले गए, आपने फरमाया कि ये, वो कहने लगी कि मैं नूर देखती हूँ। गौसे पाक ने फरमाया ये नूर नहीं है, ये शैतान का फरेब है। सरकार गौसे पाक ने उस फरेब को दूर किया और उसके बाद में अपनी तरफ से नूर दिया और आखिर का जुमला कहा, मैं अपने गुलामों के साथ में यही करता हूँ। यानी मेरे गुलामों को जब मुरीद परेशान, जब मेरे गुलामों को, मेरे मुरीदों को जब शैतान परेशान करता है तो मैं इसी तरह उनकी मदद के लिए आता हूँ। फरमाया मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। आज अगर ये निस्बत कायम करनी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद में ये निस्बत कादरी बांटने के लिए ऑनलाइन हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाएंगे। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अजीजाने मुकर्रम, आज के फितनों के इस दौर के अंदर वैसे तो मुरीद होना फर्ज और वाजिब नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जरूरी और लाजिम हो गया, इसलिए कि अगर आप किसी सही पीर से मुरीद नहीं होंगे तो किसी फरेबी और धोखेबाज के चंगुल में गिरफ्तार हो जाएंगे, जो न सुन्नी होगा न जो है वो बाअमल आलिम होगा, वो तुम्हें गुमराह करके रख देगा। अपना ईमान बचाना है, अपना अकीदा बचाना है तो आला हजरत सरकार का सिलसिला जो बिल्कुल मुत्तसिल होकर के गौसे पाक तक पहुंचाए, उस सिलसिले में दाखिल हो जाए। और किससे आप मुरीद होंगे? हुजूर कायदे मिल्लत से। किससे मुरीद होंगे? हुजूर कायदे मिल्लत से। इंशाअल्लाह अगर आपने इस सिलसिले को मजबूती से साम लिया, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। हमेशा यही दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत दुआ के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।